زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کیوں ہے۔ جس طرح بدن کو صاف کرنے کے لیے نہانا پڑتا ہے، کپڑے کو صاف کرنے کے لیے اس کو دھونا پڑتا ہے، یہاں تک کہ مکان کو صاف کرنے کے لیے بھی جھاڑو لگانی پڑتی ہے، کچرا صاف کرنا پڑتا ہے، اسی طرح مال کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دے دیے تو اچھی بات ہے اور نہ دیے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی نماز ہی کی طرح فرض قرار دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جہاں بھی نماز کا ذکر قرآن میں آیا ہے کھول کر دیکھ لو، کھول کر پڑھ لو، جہاں بھی نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز معاف نہیں ہے اس طرح زکوٰۃ بھی معاف نہیں ہے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ ادا کر لیا تو ٹھیک اور نہیں ادا کیا تو کوئی بات نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے، بڑا نازک ہے۔ ہمارے اس دور میں زکوٰۃ کو بہت غیر ضروری چیز سمجھ لیا گیا ہے، اور کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی تو ماشاءاللہ زکوٰۃ دیتا ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ ارے بھائی احسان نہیں کر رہا وہ، زکوٰۃ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو فریضہ ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اور زکوٰۃ تو بغیر زکوٰۃ کے مال پاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ ہر چیز کا تھوڑا الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، جب تک وہ بکری 40 کی گنتی تک نہ پہنچ جائیں جب تک زکوٰۃ نہیں ہے، 39 تک زکوٰۃ نہیں ہے، 40 ہو گئی زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ کسی کے پاس گائیں ہیں، 19 گائے تک زکوٰۃ نہیں ہے، 20 گائے اگر ہو گئی تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اسی طرح سے فصل کی زکوٰۃ ہے، اگر 19 من غلہ ہو گیا معاف ہے، 20 من ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اس میں سے 1 من دینا پڑے گا زکوٰۃ کا۔ اسی طرح رقم کا معاملہ ہے، کسی کے پاس 100 کا نوٹ رکھا ہے اور وہ سال بھر تک کام نہیں آیا، مثال دے رہا ہوں، 100 سے ہی گنتی کر لینا، 1000 لاکھ کروڑ تک، 100 میں سال ہو گیا کام نہیں آیا، رکھا رہا، اب وہ آپ کے 97.5 میں رہ گئے، 2.5 روپیہ اس میں سے آپ کو جائز نہیں خرچ کرنا، وہ تو کسی صاحب نصاب کو دینا پڑے گا، اس میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی 2.5 روپے کی۔ اسی طرح 1000 ہو گئے تو 25 روپے، اسی طرح آگے جتنی رقم ہوگی۔ اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا 1 کوئنٹل گیہوں ہے، اب 1 کوئنٹل گیہوں میں سے 2.5 من گیہوں میں سے کتنا نکل گیا زکوٰۃ کا؟ بھائی 20 کلو میں سے 1 کلو، 40 کلو میں سے 2 کلو، من میں سے 2 کلو ہو گیا تو 5 کلو ہو گیا۔ اب آپ اس 1 کوئنٹل کو بیچ کر کے اس کی رقم لیا آپ نے، اور آپ سوچو کہ میں 2.5 روپیہ سینکڑا سے اس کی زکوٰۃ دے دوں، وہی بات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا۔ نقد پیسہ ہے
का सिर्फ उस पैसे की ज़कात अदा होगी जो पैसा नकद रखा है आपके पास। जो जिन्स है उस जिन्स में तो जिन्स ही दी जाएगी। सरसों में से सरसों, गेहूं में से गेहूं, जौ में से जौ, बाजरा में से बाजरा, प्याज में से प्याज, जो भी फसल है उस फसल में से वही फसल दी जाएगी। अब उस फसल को, उस ज़कात को अगर आप बेचते हो अलग से, अपने से अलग करके, उसकी कीमत जमा कर सकते हो। पहली बात तो एक, आप बेच ही नहीं सकते बगैर उसकी इजाज़त के जिसको ज़कात देनी है। वो चाहे तो कीमत ले, चाहे तो आपकी जिनस ही ले। वो कहे मुझे तो गेहूं ही लेने हैं तो गेहूं ही देने पड़ेंगे, गेहूं का गेहूं ही देने पड़ेंगे, पैसे नहीं। पैसे तो उसकी रजामंदी से आप दे सकते हो अगर वो चाहे तो। अब ज़कात दें किसको, ये है मसला। ये बड़ा अजीब मसला है, ज़कात किसको दें, ज़कात का मुस्तहिक कौन है, ज़कात किसको लगेगी। हमारी मेवाती भाषा में कहते हैं कि ज़कात कैसे लगेगी। तो ज़कात लगेगी, अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ साफ खोल खोल के कुरान में बयान कर दिया। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए, 8 किस्म बताई हैं। ज़कात की अदायगी के लिए कुरान ने 8 किस्म बताई हैं। मैं आपको वो 8 किस्म बता देता हूँ समझा करके। पहली किस्म लिल फ़ुक़राए, फ़कीरों के लिए। अब यहाँ गलत फहमी एक तो ये है कि फ़कीर कौन होता है, ये समझना पड़ेगा। फ़कीर हम किसको कहेंगे, फ़कीर की क्या पहचान है। हमारे जो बिरादरी बना दिया, कौम बना दिया, कौम कोई फ़कीर नहीं है। ये तो वैसे कहने लग गए इनको, ये तो शाह जी हैं, फ़कीर तो खामखा कहते हैं इनको हम बेवकूफ़ी। ये हमारी बेवकूफ़ी और जहालत की वजह से कहते हैं, क्योंकि पहले बुज़ुर्ग इनमें थोड़े कुछ मांग लेते थे, वसूली कर लेते थे। लेकिन ये फ़कीर कोई कौम नहीं है। कौम, फ़कीर की मिसाल कुरान में जो दी है, फ़कीर कहते हैं उसको कि आपको पता है कि ये बेचारा हाजतमंद है, ये ज़रूरतमंद है, लेकिन सवाल नहीं कर रहा है, ये तंग है। ये पता करना आपको ज़रूरी है कि हमारी बस्ती में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारी रिश्तेदारी में कोई इस तरह का हाजतमंद है जो सवाल भी नहीं करता, किसी से मांगता भी नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाता भी नहीं है, लेकिन है वो ज़रूरतमंद, है वो बेचारा परेशान, उसकी छप्पर भी टूटा पड़ा है, उसकी छत भी चू रही है, उसके घर में सर्दियों में बिस्तरे भी नहीं हैं, सोने के लिए चारपाई भी नहीं है, आप देख रहे हो रोज़मर्रा, लेकिन वो किसी से सवाल नहीं कर रहा है। तो फिर जो है, अब आप उसको चुपचाप ज़कात दे सकते हो। वो ज़कात का मुस्तहिक है, उसको ज़कात लगेगी, वो ज़कात ले सकता है। कुछ ऐसे खुददार भी होते हैं जो ज़कात और सदक़ा के नाम से लेना ही पसंद नहीं करते। उनको मत बताओ कि हम किस लिए दे रहे हैं, ये क्या आपका कौन सा पैसा है, ज़कात मत बताओ उनको, सदक़ा मत बताओ। ले भाई ये 1000 रुपये हैं, ले ले यार, काम मेरे पास हैं, तू तेरी अपनी ज़रूरत में ले ले, इस तरह से दे दो। एक तो हुआ इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए, फ़कीरों के लिए। फ़कीर की तारीफ़ मैंने बता दी आपको, फ़कीर किसको कहते हैं। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के लिए। अब मिस्कीन कौन है, मिस्कीन वो है जो हाजतमंद भी है, ज़रूरतमंद भी है और सवाल भी करता है, वो आपसे मांगता भी है, उसको झिझक नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मांग रहा है, गलत नहीं मांग रहा है, इसके पास बेचारा ये मुस्तहिक है, इसके पास तंगी है, उसको भी ज़कात का पैसा देना चाहिए, वो भी ज़कात का मुस्तहिक है। वल आमिलीन अलैहा, और ज़कात का पैसा उसको भी दे सकते हैं जिसको
ज़कात वसूल करने के लिए हम भेजते हैं उसकी तनख्वाह के तौर पर। मिसाल के तौर पे अब यहाँ निज़ाम नहीं है, फिर अल्लाह के नबी के ज़माने में तो निज़ाम ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजते थे कि आप फ़लाँ इलाक़े में जाओगे, वहाँ से ज़कात वसूल करके लाओगे। किसी सहाबी को किसी जगह भेज दिया, किसी को किसी जगह भेज दिया, और वो जाकर के ज़कात वसूल करते थे। इस तरह हमारे मदरसे वाले करते हैं आजकल, जिस तरह मदरसे वाले चंदा करते हैं, लेकिन वो आम चंदा करते हैं, वो ज़कात सदक़ात और वैसे भी सब कुछ वो इकट्ठा मिला देते हैं, ये गलत करते हैं। तो मदरसा वालों की उगाही के लिए जो सदका खैरात वसूल करने के लिए जो लोग जाते हैं और वसूल करते हैं, उनको भी ज़कात में से तनख्वाह दे सकते हैं। वल आमिलीना अलैहा, ये तीसरा है। वल मुअल्लिफ़त क़ुलूबुहुम, और वो लोग जो इस्लाम को पसंद करते हैं, इस्लाम की तरफ माइल होना चाहते हैं, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो नादार हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, अभी मुसलमान भी नहीं हैं वो, लेकिन इस्लाम को बुरा भला नहीं कहते, इस्लाम को अच्छा समझते हैं। ऐसे गरीब मिस्कीनों को भी हम ज़कात के पैसे में से पैसा दे सकते हैं। व फिर रिकाब, अब ये जो है पाँचवां आ गया। फिर रिकाब, सऊदी अरब में, इस्लामी मुल्कों में आम तौर से किसी से कोई जुर्म हो जाता है, कोई ख़ता हो जाती है, कोई कुछ भी गुनाह कर देता है, तो जो उसकी सज़ाएं हैं, वहाँ की सज़ाओं में कुछ सज़ाएं तो ऐसी हैं कि जो सज़ाए मौत है या फिर दिनों की सज़ाएं, लेकिन कुछ सज़ा वहाँ पैसों की है कि इतने हज़ार रियाल जमा कर दो, जुर्माना जमा कर दो तो तुम छूट जाओगे। आज भी है वहाँ ये निज़ाम, आज भी है कि इतने हज़ार रियाल तुम जमा कर दो सरकारी ख़जाने में तो तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, तुमको रिहाई मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों की रिहाई के लिए जो सज़ा याफ्ता हैं, जिनको सज़ा हो चुकी है, उनको छुड़ाने के लिए आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं। आज भी रमज़ान के महीने में बहुत से सेठ लोग सऊदीया में, कुवैत में, इराक़ में, लेबनान में, ओमान में, मस्कत में ऐसे कैदियों को छुड़ाते हैं, उनका जुर्माना जमा करते हैं, उनका जुर्माना भर के छुड़ा लेते हैं। तो इसमें भी जो है ज़कात का माल हम दे सकते हैं। वल गारिमीना, और अब ये जो है सातवां ये है कि जो कर्ज़दार है, किसी के पास कर्ज़ा चढ़ गया है, मुसलमान है, ईमान वाला है, ईमानदार है, एक आदमी है, लेकिन कुनबे के अखराजात हैं और किसी वजह से इतना कर्ज़ा हो गया है कि कर्ज़ा उतरने में नहीं आ रहा है। कर्ज़ा वो उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई ऐसी आमदनी नहीं है, इतना पैसा वो नहीं कमा पा रहा है कि वो कर्ज़ा अदा कर सके, और कर्ज़े वाले उसको जो है परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तकाज़ा कर रहे हैं, और वो बेचारा मजबूर है, माजूर है, और आपको पता है कि इसके पास 10,000, 20,000, 50,000 का कर्ज़ा है, तो ज़कात देने वाले उसका कर्ज़ा अदा करने में अपनी ज़कात दे सकते हैं। उसका कर्ज़ा अदा करके उसको छुटकारा दिला दें, उसको राहत दे दें, जो है ये भी ज़कात का एक मसरफ़ है, उसके लिए भी ज़कात देना जायज़ है। और आठवां वफ़ी सबीलिल्लाह, अब फ़ी सबीलिल्लाह में वब्न सबील, एक इसमें और है आ गया बीच में, वब्न सबील, एक आदमी खूब मालदार है, खूब पैसे वाला है,
लखपति है, करोड़पति है, लेकिन सफ़र पे निकला है और सफ़र में निकल कर उसकी जेब कट गई या माल गुम हो गया, पैसा गिर गया, खो गया, कोई बात हो गई और सफ़र में अब वो मजबूर है। घर पे पैसा खूब है, घर पे उसके पास काफ़ी माल दौलत है, लेकिन लंबे सफ़र पर है और सफ़र में वो खर्च टूट हो गया, किराए से मजबूर हो गया, तो उसके सफ़र खर्च के लिए चाहे वो कितना ही मालदार है, आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं। इसके लिए भी ज़कात देने की इजाज़त है। वब्निस सबील, और फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जहाँ कहीं भी रफ़ाही काम हो उसमें भी ज़कात दे सकते हैं।